Good morning, student. Myself Chirag Sukhani from Rockwell BB College Vapi, and I'm going to teach you financial management subject, and we will continue our chapter that is capital budgeting. So, example number 16, October 2017 and October November 2019. Now, EBC Company Limited, an engineering company, is considering the purchase of a new machine for its immediate expansion program. एक company है उसको expansion करना है. There are three possible machines at the same cost. Three machines उसके पास option है, which are suitable for the purpose. The detail of these are given with estimated cost and the sales value. So item machine A, machine B, machine C का capital cost. Capital cost is nothing but initial investment, initial cost of the project. 3 lakh for each. Then sales at standard price 5 lakhs, 4 lakh and the 4 lakh 50,000. Then net cost of production is given: direct material, direct labor, factory overhead, administrative cost, selling and distribution cost. So these are the certain cost for machine A, machine B and machine C is given. The economic life of the machine A is 2 years, while it is 3 years for the other two machine. यानी A के लिए 2 years, B and C के लिए 3 years है. After which the scrap value will be rupees 40,000, 25 and 30,000 respectively. And scrap value, selling value 40,000 for machine A, 25,000 for machine B and 30,000 for machine C. Sales are expected to be at the rate shown for each year during the lifetime of the machine. जितना भी life है same है sales. The cost relate to the annual expenditure resulting from each machine. Average tax rate 45%. Payable and receivable are settled promptly in a working capital. Interest on capital is to be on uniform basis 8%. now यहाँ पे नया आया that is interest, जो आगे एक भी सम्स में नहीं आया था, तो ये आपको कंसिडर करना है. You are required to value the proposal. Value निकालना है, that is present value. Value the proposal and show which machines would be the most profitable investment on the basis of net cash flow. ओके, now ये सम्स 2 टाइम पूछा था, तो यहां तक वाला 2017 में था. एंड ऑन द बेसिस ऑफ पे बैक अमाउंट सेम. एक बार क्या पूछा था? प्रेजेंट वैल्यू. एक बार क्या पूछा था? पे बैक. सो मैंने एक ही सम्स में दोनों कैलकुलेट कर लूंगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑल्सो एज वेल एज पे बैक पीरियड ऑल्सो. एजम्पशंस: factory overhead do not include depreciation. Capital borrowed is repaid at the end of the economic life of the machine and working capital is assumed to be nil. So ये सब इंफॉर्मेशन दिया. सो फर्स्ट हम लोग को क्या करना पड़ेगा? डिटर्मिनेशन ऑफ द कैश फ्लो, और वी कैन से फर्स्ट हम लोग ये वो कैलकुलेट करते हैं ना, वो डिटर्मिनेशन ऑफ द आउटफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द आउटफ्लो फॉर द एनपीवी. बट यहाँ पे याद रखो खाली एक ही है, कैपिटल कॉस्ट ही है. इंस्टॉलेशन चार्जेस, वर्किंग कैपिटल कुछ है ही नहीं ना. सो जो आपका इन्वेस्टमेंट है वही आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो हो जाएगा फॉर द नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड. ओके, सो हम लोग डायरेक्टली कैलकुलेट करते हैं, दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ द कैश फ्लो आफ्टर टैक्स. CFAT डिटरमाइन करना है. क्या डिटरमाइन करना है? कैश फ्लो आफ्टर टैक्स फॉर मशीन ए, मशीन बी एंड मशीन सी. ओके, नाउ उसके लिए फॉर्मेट है. नाउ यहाँ पे सेल्स का इंफॉर्मेशन दिया ना, सेल्स वाला, तो हम लोग यहाँ पे कौन सा फर्स्ट जो हम लोग ने फॉर्मूला फॉर्मेट किया था ना, वो दैट इज सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट. वॉट एवर कॉस्ट इज गिवन वो माइनस होता है, दैट इज नॉट ऑपरेटिंग कॉस्ट. तो यहाँ पे बहुत सारे कॉस्ट दिया था क्लियर कट: डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट सब दे दिया था. तो हम लोग को क्या मिलता है? कैश फ्लो बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स. क्या मिलता है? कैश फ्लो बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स. बट यहाँ पे इंटरेस्ट भी दिया है, सो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? कैश फ्लो बिफोर डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट एंड टैक्स, दैट इज कैश फ्लो BDIT. ओके, सो कैश फ्लो में से बिफोर डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट एंड टैक्स, फर्स्ट क्या माइनस होगा? डेप्रिसिएशन. तो क्या मिलेगा? कैश फ्लो बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. जो आप फॉर्मेट यूज करते थे ना वही फॉर्मेट है, बट यहां पे खाली इंटरेस्ट आया तो इंटरेस्ट वाला माइनस कर देना है. कब? पहले डेप्रिसिएशन, दैट इज कैश फ्लो बिफोर डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट एंड टैक्स. सो कैश फ्लो में से पहले माइनस क्या होगा? डेप्रिसिएशन. तो क्या आएगा?
कैश फ्लो बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आएगा. सो माइनस करेंगे इंटरेस्ट, वॉट एवर परसेंटेज इज गिवन. तो ये सम्स में 8% दिया था इंटरेस्ट. तो हमें क्या मिलेगा? कैश फ्लो बिफोर टैक्स, दैट इज टैक्सेबल इनकम. सो माइनस क्या कर देंगे? टैक्स, दैट इज वॉट एवर परसेंटेज इज गिवन. तो ये सम्स में 45% इज गिवन. तो हमें क्या मिल जाएगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और अर्निंग आफ्टर टैक्स. सो हम लोग उसमें ऐड कर देते कैश, ऐड करते हैं डेप्रिसिएशन, तो क्या मिल जाता है? कैश फ्लो आफ्टर टैक्स. सो ये हम लोग को कैलकुलेट करना है फॉर मशीन ए, बी एंड सी. देन आफ्टर वी हैव टू कैलकुलेट द नेट प्रेजेंट वैल्यू एज वेल एज पे बैक पीरियड. चलो सेल्स कितना दिया फॉर मशीन ए? 5 lakhs, 4 lakh, 4,50,000. सो मशीन ए 5 lakh, then machine B 4 lakh, and for machine C 4,50,000. then ऑपरेटिंग कॉस्ट दे दिया है फॉर मशीन ए, बी, सी. सो मशीन ए डायरेक्ट मटेरियल 40,000, डायरेक्ट लेबर 50,000, then 60,000, then 20,000, and then 10,000. ये सब माइनस कर देना है. लाइकवाइज फॉर मशीन बी भी दे दिया 50,000, 30,000, 50,000, 10,000, and the 10,000. Likewise for machine C 48,000, 36,000, 58,000, 15,000, and the 10,000. आया? तो 5 lakhs में से ये सब कॉस्ट माइनस करना है. तो क्या मिलेगा? कैश फ्लो बिफोर डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट एंड टैक्स. सो माइनस करेंगे तो आएगा 3,20,000 आंसर आएगा. लाइकवाइज 4 लाख में से ये सब कॉस्ट माइनस करेंगे तो 2,50,000 आएगा. 4,50,000 में से ये सब कॉस्ट माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 2,83,000. ओके, सो माइनस करना है डेप्रिसिएशन. सो वर्किंग नोट में हम लोग फाइंड आउट करेंगे डेप्रिसिएशन. ना डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला पता है, दैट इज कॉस्ट, दैट इज इनिशियल कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस इफ एनी माइनस सेल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स. सो मशीन ए के लिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट. मशीन ए का कॉस्ट कितना है? 3 लाख है, प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस कुछ नहीं है ना. मशीन ए का सेल्वेज वैल्यू दिया है दैट इज 40,000. देखो यहाँ पे स्क्रैप वैल्यू विल बी 40,000, 25 एंड 30 रिस्पेक्टिवली. सो ए का कितना हुआ? 40,000. एंड नंबर ऑफ ईयर्स भी अलग अलग है. मशीन ए का 2 years है, मशीन बी एंड सी का 3 years है, तो वो भी ध्यान देना है. सो यहाँ पे क्या आएगा? 2. ओके, सो 3 लाख माइनस 40,000 दैट इज 2,60,000 आएगा डिवाइडेड बाय 2. सो डेप्रिसिएशन कितना आएगा? 1,30,000 फॉर मशीन ए, 1,30,000. लाइकवाइज फॉर मशीन बी के लिए हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं. सो मशीन बी का कॉस्ट कितना है? फॉर्मूला आगे नहीं लिखते हैं. मशीन बी का भी कॉस्ट कितना है? 3 लाख है, इंस्टॉलेशन 0 है और इसका स्क्रैप वैल्यू 25,000 है एंड नंबर ऑफ ईयर्स उसके 3 है. सो 3 माइनस 25 दैट इज 2,75,000 डिवाइडेड बाय 3. सो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज व्हाट? 9166. पॉइंट में आएगा, सो पॉइंट के बाद 6 है, सो 91,667. ओके, लाइकवाइज फॉर मशीन सी कॉस्ट 3 लाख है, 0 उसका इंस्टॉलेशन है एंड माइनस उसके सेल्वेज वैल्यू है 30,000 एंड उसकी भी लाइफ 3 years की है. सो 2,70,000 माइनस 3 आएगा. सो डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना आएगा? 90,000. सो वर्किंग नोट में हम लोग ने कर लिया वह डेप्रिसिएशन. सो बी के लिए 91,667 एंड सी के लिए कितना आया? 90,000. क्लियर? नाउ कैश फ्लो बिफोर डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट टैक्स में से डेप्रिसिएशन चला गया तो क्या मिलेगा? कैश फ्लो बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. तो कितना आएगा? 1,90,000, 1,58,333 एंड 1,93,000. क्लियर? नाउ इंटरेस्ट, नाउ यहाँ पे दिया है आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी पेड ऑन यूनिफॉर्म बेसिस 8%. नाउ कैपिटल भी सबका सेम है 3 lakhs. ओके, सो इंटरेस्ट का हम लोग यहाँ पे वर्किंग नोट करते हैं. सो कैपिटल कॉस्ट कितना है? 3 lakhs.
उसके ऊपर 8% सेम लग रहा है, सो इंटरेस्ट कितना होगा 24,000। क्लियर? सो इंटरेस्ट क्या होगा 24,000 एंड 24,000। नाउ माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, कैश फ्लो बिफोर टैक्स, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट टैक्सेबल इनकम, दैट इज 1,66,000 यानी 1,66,000, then 1,34,333 and 1,69,000। ओके, माइनस टैक्स करना है 45%, यानी ये अमाउंट का 45% कितना आएगा 74700, ये अमाउंट का 45% 60,450, ये अमाउंट का 45% 76050। सो माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिल जाएगा, और अर्निंग आफ्टर टैक्स दैट इज 91300, 73883 एंड 92950। डेप्रीशिएशन ऐड कर दो, दैट इज 1,30,000, 91667 एंड 90,000। सो हमें मिल जाएगा कैश फ्लो आफ्टर टैक्स 221300, 165550 एंड 182950। क्लियर? तो ये मेन था हमारा कैश फ्लो आफ्टर टैक्स कैलकुलेट करना। ओके, अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे प्रेजेंट वैल्यू। सो फर्स्ट नेट प्रेजेंट वैल्यू, एक ही सम्स में दोनों ले लेंगे। सो फ्रॉम मशीन ए, नाउ नेट प्रेजेंट वैल्यू का आपको टेबल पता है ना, ईयर कैश फ्लो आफ्टर टैक्स डिस्काउंट इन द प्रेजेंट वैल्यू। तो यहाँ पे डिस्काउंट आपको इंटरेस्ट दिया है तो वो डिस्काउंट होगा, वॉट एवर इंटरेस्ट इज गिवन ना वो डिस्काउंट होगा। ओके, बिकॉज यहाँ पे क्लियर कट दिया नहीं है कि कितना डिस्काउंट करना है, रेट भी नहीं दिया। ओके, खाली इंटरेस्ट रेट इज गिवन। सो यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू में क्या लेना है 8% है। तो कैश ये 2 इयर्स का है, सो 1 2, नाउ 2 इयर्स के लिए कैश फ्लो सेम आ रहा है, दैट इज 221300, 221300, 221300। नाउ अभी याद रखो, जो आप नेट प्रेजेंट वैल्यू में कैश फ्लो आफ्टर टैक्स लेते थे, पता है आपको कैश फ्लो आफ्टर टैक्स ईयर वाइज लेते थे, तो ईयर 1 2 3 4 5, तो वर्किंग कैपिटल आपको लास्ट ईयर में मिलता था, सेल्वेज वैल्यू आपको लास्ट ईयर में मिलता था। ओके, तो यहाँ पे तो 2 इयर्स का ही प्रोजेक्ट है। ओके, सो डायरेक्टली मैं यहाँ पे सेल्वेज वैल्यू लिख रहा हूं, तो ये सेकंड ईयर में आपका सेल्वेज वैल्यू मिलेगा। सो सेकंड ईयर में कितना मिलने वाला है सेल्वेज वैल्यू 40,000, दैट इज सेल्वेज वैल्यू। ओके, बिकॉज सेल्वेज वैल्यू भी आपको आफ्टर 2 इयर्स मिलेगा, तो उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना है बाय डिस्काउंटिंग द वैल्यू। ओके, तो यहाँ पे हम लोग कैश फ्लो आफ्टर टैक्स जब एनपीवी कैलकुलेट करते थे ना, तो वहां पे ले लेते थे, डायरेक्टली ऐड कर देते थे लास्ट ईयर में। बट यहाँ पे तो ए बी सी अलग अलग प्रोजेक्ट दिया है, तो ए 1-2 इयर्स का है तो 2 इयर्स में आएगा, बी प्रोजेक्ट 3 इयर्स का है तो 3 इयर्स के बाद मिलेगा, एंड मशीन सी भी 3 इयर्स का है तो 3 इयर्स के बाद मिलेगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्टली ऐड कर रहा हूँ, इंक्लूड कर रहा हूँ, सेकंड ईयर से मिलेगा, दैट इज सेल्वेज वैल्यू। नाउ डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 8%, नाउ 8% यानी 8 डिवाइडेड बाय 100, दैट इज 0.08, यानी 1.08 आता है ना। आपको ये फॉर्मूला तो याद रखना ही है, दैट इज 1/1 प्लस आर, यानी 1/1 प्लस 0.08, यानी 1/1.08। ओके, सो 1/1.08, तो वैल्यू कितना आया, दैट इज 0.926। फर्स्ट ईयर में कितना है 0.926, इक्वल टू करेंगे सेकंड ईयर में 0.857, इक्वल टू करेंगे अगेन, सॉरी ये थर्ड ईयर नहीं सेकंड ईयर का ही है, तो यहाँ पे भी सेकंड ईयर का सेम वैल्यू 857 आएगा, बिकॉज ये 2 इयर्स में आपको सेल्वेज वैल्यू मिलेगा। क्लियर? नाउ उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, सो 221300 इंटू 0.926, दैट इज 204,924 पॉइंट आएगा, कन्वर्ट कर दिया है 189,654। ओके, अगेन कन्वर्ट किया है, एंड 34280, सो टोटल ऑफ प्रेजेंट वैल्यू 428858। ओके, सो एनपीवी का फॉर्मूला प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। सो इनफ्लो कितना आया 428858, एंड इनफ्लो यहाँ पे एक ही इन्वेस्टमेंट ही है, दैट इज 3 लाख रुपीज का, बिकॉज यहाँ पे कुछ दिया ही नहीं है बाकी। सो पॉजिटिव आएगा 12
8858 rupees. Net present value positive for machine A. Likewise, we calculate for machine B. Okay. Now machine B. मशीन बी तो फॉर्मेट तो सेम ही रहेगा, योर कैश फ्लो आफ्टर टैक्स डिस्काउंट एंड प्रेजेंट वैल्यू. नाउ मशीन बी के लिए कैश फ्लो कितना मिला? 165550. 165550. ये 3 इयर्स तक सेम मिल रहा है. 165550 एंड एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर आपको सेल्वेज वैल्यू भी मिलेगा. सो मशीन बी का सेल्वेज वैल्यू मिलने वाला है 25,000. तो वो भी थर्ड ईयर में मिलेगा, मैच्योरिटी लास्ट में एट द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट. ये 8% का सेम ही रहेगा. ओके तो यहाँ पे थर्ड ईयर का खाली मैंने ऐड किया है. तो कैसे करना है? 1 डिवाइडेड बाई 1.08. तो ये फर्स्ट ईयर का 926 इक्वल टू सेकंड ईयर का 857 इक्वल टू 0.794 थर्ड ईयर का हुआ. तो ये भी थर्ड ईयर में मिलेगा, तो 0.794 के साथ डिस्काउंट करना है. सो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 153299, 141876, 131447 and 19850. So total of present value 446472. So inflow कितना आया? 446472 माइनस आउटफ्लो 3 लाख. सेम ही है. सो आंसर आएगा 146472 रुपीज फॉर मशीन बी. लाइकवाइज फॉर मशीन सी. मशीन सी के लिए कैश फ्लो आफ्टर टैक्स कितना है? 182950, 182950. और मशीन सी ये भी 3 इयर्स का ही प्रोजेक्ट है. इन सेम 3 इयर्स तक सेम कैश फ्लो मिल रहा है एंड थर्ड ईयर में सेल्वेज वैल्यू भी मिल रहा है, दैट इज 30,000. ये सेल्वेज वैल्यू है 30,000. ओके सो मल्टीप्लाई करना है ये फैक्टर के साथ. सो यहाँ पे 926 857 794 794. सो मल्टीप्लाई करेंगे. ओके तो आंसर आएगा 169412, 156788, 145262, 23820. सो टोटल प्रेजेंट वैल्यू 495282. So present value of inflow 495282 minus initial investment और present value of outflow 3 lakhs है. So rupees 195282. Okay अभी आपको कौन सा प्रोजेक्ट ज्यादा प्रॉफिटेबल है? So according to NPV machine C would be मोस्ट प्रॉफिटेबल. वाई? तीन का तो एनपीवी पॉजिटिव ही आया, बट मोस्ट प्रॉफिटेबल कौन सा होगा? सी, बिकॉज ऑफ हायर एनपीवी, दैट इज ₹1,95,282. वेरएज मशीन बी का क्या था? 1,46,000 एंड मशीन ए का 1,28,000 आया. क्लियर? सो ये एनपीवी कैलकुलेट किया. लाइकवाइज हम लोग कैलकुलेट करेंगे पे बैक पीरियड. ना पे बैक पीरियड यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो आपको कैश फ्लो है ना, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स सेम मिल रहा है 2 इयर्स के लिए, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स सेम मिल रहा है 2 इयर्स के लिए, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स सेम मिल रहा है 2 इयर्स के लिए. ओके सो डायरेक्टली हम लोग का सिंपल सा फॉर्मूला, सेम कैश फ्लो होता है तो फॉर्मूला क्या होता है? इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एनुअल नेट कैश फ्लो फॉर द पे बैक पीरियड. सो मशीन ए, सो मशीन ए का इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है? 3 लाख है. ओके एंड उसका नेट कैश फ्लो कितना सेम है? 221300, 221300. सब डिवीजन करेंगे तो 1.36 और ये टाइम पीरियड में आता है तो ईयर्स आएगा. लाइकवाइज फॉर मशीन बी, उसका इन्वेस्टमेंट भी सेम ही है. इनिशियल इन्वेस्टमेंट 3 लाख मशीन बी का, बट उसका कैश फ्लो कितना आया? 165550, 165550. सो मशीन बी के लिए कितना आएगा? 1.81 ईयर्स. लाइकवाइज फॉर मशीन सी, उसका कैश फ्लो तो सेम ही है 3 लाख. ओके बट उसका इन्वेस्टमेंट तो सेम ही है 3 लाख, बट कैश फ्लो कितना है? 182,950, 182,950. ओके तो उसका आंसर आएगा 1.64 ईयर्स. ओके सो अकॉर्डिंग टू द पे बैक पीरियड,
Which project we have to accepted according to payback period? Project A would be most profitable because minimum time period to recover ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। आपको पेबैक का क्राइटेरिया पता होना चाहिए। सो पेबैक में तो जिनका प्रोजेक्ट का टाइम पीरियड सबसे लो होगा ना, वो प्रोजेक्ट को आपको एक्सेप्ट कर देना है। सो सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल 1.36 वाला रहेगा। क्लियर? तो एक ही क्वेश्चन में जो अलग अलग ईयर में पूछा था, एक टाइम प्रेजेंट वैल्यू पूछा था और एक टाइम पेबैक के अकॉर्डिंगली पूछा था, तो मैंने दोनों साथ में करवा दिया। Clear? Now, next time in the next video. Bye. Take care.